Assalamu alaikum students. I am Afna Ishtiaq, your online teacher for the subject of chemistry. Dear students, today we are going to start our lecture number 16 and our today's topic of discussion is uses of bases from page number 30 of your chapter number 2. We have already discussed about bases, their physical properties and their chemical properties. Before discussing the uses of bases, we will take a little review of all that topics regarding the bases. First of all, what are bases? Bases are the substances that can dissociate hydroxide ions OH negative ions in water on hydrolysis. Bases are the substances that can accept a proton from another substance according to the Lowry-Bronsted concept. Basis is a substance, molecule or ion which can donate a pair of electron to another substance which is mainly an acid. So these were all the definitions of bases according to different concepts which were proposed by Arrhenius, Lowry-Bronsted and the third one was Lewis. So these were the definitions of bases according to the different concepts. Then we discussed their physical properties. Bases are the substances that have bitter taste. Bases are the substances that can turn your litmus paper blue. Bases are non-corrosive. Bases are slippery in touch. Their aqueous solution conduct electricity. These were the physical properties of bases. Then we have discussed their chemical properties. According to chemical properties of bases react with different acids, salts and other metals in different way and they form different products. When bases react with acids, they produce ammonia gas and a salt which is NaCl and water. When they react with ammonium salts, they produce ammonia gas. They liberate ammonia gas, NH3 gas. Bases reacts with hydroxides and they form precipitates. Precipitates are of different color depending upon the metal which is used with acids. For example, copper sulfate react with sodium hydroxide which is also called as caustic soda and a blue color precipitate copper hydroxide is formed. In the same way, bases react with zinc chloride. Zinc is also a metal and it forms white precipitates along with sodium chloride. So these were different reactions of bases which we have studied in our previous lectures. Now our main topic of discussion is uses of bases. Bases are of different types and all these bases have different uses. First base which is we are going to discuss is sodium hydroxide. The formula of sodium hydroxide is NaOH. Sodium hydroxide formula is NaOH. Sodium hydroxide is used for the manufacturing of soap. ये साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है. Second one is calcium hydroxide, CaOH twice, is used for manufacturing of bleaching powder, softening of hard water. जो हार्ड वाटर होता है उसके अंदर जो हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप होता है ड्यूटियम उसकी प्रेजेंस होती है तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ड्यूटियम आयंस इन वाटर इज कॉल्ड एज हार्ड वाटर. एंड न्यूट्रलाइजिंग एसिड सॉइल्स. न्यूट्रलाइजिंग एसिड सॉइल्स का मतलब होता है कि अगर एसिडिक सॉइल्स हैं आपके पास तो आप उनके साथ क्या करेंगे, बेसिस को यूज़ करके उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे और उनकी एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ को कैंसिल कर देंगे. एंड लेक्स ड्यू टू द एसिडिक रेन, क्योंकि उनके अंदर एसिडिक रेन आ जाती है, एसिड रेन आ जाती है. एसिड रेन इज़ ड्यू टू द सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स आयंस जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है. तो एसिडिक आयन को हम बेसिक के साथ बेसिस या एल्कलीज के साथ रिएक्ट करवाते हैं और उनको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करवा लेते हैं. तो ये जो था हमारा सेकेंड यूज़ था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिफरेंट वेज में हम यूज़ करते हैं. आपने ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर करना है, आपने हार्ड वाटर को सॉफ्ट करना है, आपने अपनी एसिड्स को और लेक्स को, एसिडिक सॉइल्स को और लेक्स को आपने न्यूट्रलाइज करना है. तो आप क्या करते हैं, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं वहाँ पे. थर्ड है हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. पोटाशियम का जो सिंबल होता है वो होता है के.
तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है KOH। स्टूडेंट्स, हमने जो सेकंड यूज़ पढ़ा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, उसमें मैंने आपको बताया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस। तो वो कैसे बना कि कैल्शियम के ऊपर वैलेंसी होती है +2 और हाइड्रोक्साइड के ऊपर वैलेंसी होती है -1। तो क्रॉस एक्सचेंज मेथड करवाया हमने, तो इसलिए कैल्शियम का जो +2 है वो हाइड्रोक्साइड के नीचे गया था, तो इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH ट्वाइस बना। थर्ड यूज़ है हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड इन अल्कलाइन बैटरीज में हम यूज़ करते हैं। फोर्थ यूज़ है हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है MgOH ट्वाइस। सेम इन दी वे जैसे कैल्शियम के ऊपर Ca2 पॉजिटिव होता है, इसी तरह मैग्नीशियम के ऊपर भी Ca2 पॉजिटिव होता है, तो वो क्रॉस एक्सचेंज मेथड के ज़रिए से क्या बन जाता है, MgOH ट्वाइस। इज़ यूज एज अ बेस टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन द स्टमक। ये स्टमक के अंदर जो हमारी एसिडिटी हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस होती है, उसे हम स्टमक एसिडिटी कहते हैं। मतलब कि जब आप कोई स्पाइसी चीज़ खा लेते हैं या ओवर ईटिंग कर लेते हैं या स्मोकिंग या फिर आप कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले रहे होते हैं, तो उसकी वजह से जो आपके स्टमक के अंदर बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस होती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टमक एसिडिटी कहते हैं। तो स्टमक एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जो हम बेस यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, MgOH ट्वाइस। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बी स्टिंग। ये हमारा फोर्थ यूज़ था। हमने अभी तक 4 बेसिस पढ़ी हैं और उनके 4 यूजेस डिस्कस किए हैं। फर्स्ट वन वॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड, second one was calcium hydroxide, third one was potassium hydroxide, fourth one was magnesium hydroxide। इनके हमने साथ साथ केमिकल फार्मूलाज को डिस्कस किया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला है NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला है CaOH ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला है KOH और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला है MgOH ट्वाइस। तो यहाँ से हमने देखा कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड था, इट इज़ यूज्ड एज अ बेस टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ द स्टमक। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बी स्टिंग। फिफ्थ वन इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस। AlOH थ्राइस का जो हमारे पास केमिकल फार्मूला होता है वो होता है AlOH थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम के ऊपर क्योंकि +3 वैलेंसी होती है, तो इसलिए जब क्रॉस एक्सचेंज मेथड किया तो उसका केमिकल फार्मूला क्या बन जाता है, AlOH थ्राइस। इट इज़ यूज्ड एज ए फॉर्मिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। जो हम आग बुझाने के लिए जो मटेरियल यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो हम बेस यूज़ करते हैं वो हमारी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होती है। सिक्स वन इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4। अगर यहाँ पे होता अमोनिया, तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। लेकिन अभी हम कौन सी बेस यूज़ कर रहे हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है NH4OH। NH4OH इज़ यूज टू रिमूव ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ। जो कपड़ों पे दाग वगैरह लग जाते हैं, उनके लिए, उनको रिमूव करने के लिए जो हम बेस यूज़ करते हैं वो हमारी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH। स्टूडेंट्स, मैं आपको केमिकल फार्मूला साथ साथ में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि समटाइम्स पेपर में केमिकल फार्मूला दे के उसके यूज़ पूछ लिए जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको उसका नेम इंडिकेट करवाया जाए। समटाइम्स आपको केमिकल फार्मूला के साथ यूजेस पूछे जाते हैं, तो आपने केमिकल फार्मूलाज को ध्यान में रखना है। केमिकल फार्मूलाज ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिम्बल्स पता है। आप खुद से केमिकल फार्मूला जो है, जिस तरह अभी हमने लेक्चर में डिस्कस किया है, वैसे ही आप खुद से केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं, वो कोई मुश्किल बात नहीं है। तो यहाँ से हमने यूजेस ऑफ बेसिस को डिस्कस किया है कि डिफरेंट बेसिस का डिफरेंट यूज़ होता है, जो डिफरेंट पर्पस में हम या डिफरेंट रिएक्शंस में या डिफरेंट चीज़ों में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक टेस्ट योर सेल्फ हमें दिया गया है। ये टेस्ट योर सेल्फ जो है वो हमारे ये जो 3 टॉपिक्स थे, एसिड्स के, बेसिस के और इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को, इनको डिस्कस कर रहा है, इन्हीं को कवर कर रहा है। ये मैं 1 बाय 1 हमने ये क्वेश्चन सारे जो हैं वो सोल्व किए हुए हैं। ऑलमोस्ट ये सारे रिएक्शंस के ही आपको ये पूछे हुए हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स विच गैस इवॉल्व्स। जब एसिड्स रिएक्ट करेगा कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी। आपके पास कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स हैं, तो इसका मतलब है ऑब्वियस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी।
सेकेंड है विच टाइप ऑफ साल्ट्स प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑन रिएक्टिंग विद एसिड। जब एसिड्स रिएक्ट करेंगे और सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब है सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स यूज हो रहे हैं। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पूछी जाती तो आप सल्फाइड्स लिखते। गिव द यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आपका किंग ऑफ एसिड फर्टिलाइजर्स में, एक्सप्लोजिव में, पेंट्स में, डाइज में यूज हो रहा है। नेम द गैस लिबरेटेड व्हेन अल्कलीज रिएक्ट विद अमोनियम साल्ट। जब अल्कलीज जो बेसिस हैं वो अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट करेंगे, हमने ये लेक्चर के स्टार्ट में भी डिस्कस किया था, तो अमोनिया गैस लिबरेट होती है वहाँ पे। फिफ्थ है कलर्स आपने बताने हैं प्रेसिपिटेशंस के। जो एक्वस कास्टिक सोडा NaOH रिएक्ट करता है कॉपर के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, आपका पहला रिएक्शन है ब्लू प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। जिंक के साथ वाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। और फेरिक साल्ट्स FeOH ट्वाइस के साथ डर्टी ग्रीन और FeOH थ्राइस के साथ ब्राउन प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। तो ये हमारा टेस्ट और सेल्फ था जो हमारी बुक में, हमने इसको भी एक ओवरव्यू इसका ले लिया। नेक्स्ट हमें एक थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है स्टमक एसिडिटी की। जब हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें देखा था हमने कि जब स्टमक एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं ताकि उस एसिडिटी को हम रिड्यूस कर सकें। एक्चुअली स्टमक जो होता है वो डिफरेंट केमिकल्स को सिक्रेट करता है ताकि आपकी फूड डाइजेस्ट हो सके। स्टमक इज स्पेशलाइज फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। तो उसके अंदर स्टमक की जो वॉल्स होती हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और मिल के बनी हुई होती हैं। तो वो क्या करता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हाईली करोजिव है, लेकिन स्टमक क्या करता है अब खुद से उससे डेंजरस नहीं प्रोवाइड होता। क्यों? क्योंकि वो उसको न्यूट्रलाइज कर लेता है, बेस के साथ मिलकर उसको न्यूट्रलाइज कर लेता होता है, इसलिए वो केमिकल्स वगैरह को डाइजेस्ट करता है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि एसिड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, हमें एसिडिटी फील होती है, उसको फिर हम क्या कह देते हैं, हाइपर एसिडिटी कहते हैं। ठीक है, हाइपर एसिडिटी की कुछ सिम्टम्स होती हैं कि इसमें हमें बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस होती है, हमें मतलब अच्छा फील नहीं होता, हमारी चेस्ट जो है वो बर्न कर रही होती है, जिसकी वजह से हम इसे हाइपर एसिडिटी कह रहे होते हैं। तो इस हाइपर एसिडिटी को हम क्या करते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं बाय डिफरेंट मेथड्स, अवॉइडिंग ओवर ईटिंग एंड स्टेइंग अवे फ्रॉम फैटी एसिड्स एंड स्पाइसी फूड्स। सिंपल एंड रेगुलर ईटिंग लें आप, रिमेनिंग इन एन अपर पोजिशन for about 45 minutes after taking a meal, keeping the head elevated while sleeping। ये जो डिफरेंट वेज हैं इनके ज़रिए से आप अपनी हाइपर एसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा लेक्चर नंबर 16 था जिसको हमने कवर किया है। इसकी जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर क्वेश्चन नंबर 17 to 22, उसको आपने इस लेक्चर के लिए कवर कर लेना है। थैंक यू।